Hello everyone, this is the unknown astrologer. So today I wanted to make an episode on one of the most frequently asked questions because I do a lot of career consultations. So a lot of people ask me, when will I get known in the society? When will my family respect me more? When will I gain respect of seniors in the office? In my immediate surroundings, when will people respect me, or I will be known, when will I get a dignified position? When will I issue commands to people? When will people listen to me? When will be I at that leadership position? So now I have seen a lot of charts, and especially specifically with respect to this question. And what I've noticed is that planets in the 10th house, which should usually give a leadership role, or which should usually give promotion or rank, etc., or the Lord of the 10th house, is usually considered as the planet which is supposed to give you a higher rank, more authority, more respect, more fame, does not do that. Especially respect and fame, it does not result from the planet in the 10th. It can give you a promotion and it can give you a rank, but that may not result in respect or any kind of social elevation. People knowing that you have got something. You might get it, but people may not know about it. So, what I've understood is that planets in the 10th, first of all, if let's say you have Venus in the 10th or Mars in the 10th, I'm talking about planets which move fast. Leave alone planets like Saturn and Jupiter in the 10th or Rahu in the 10th. Fast moving planets like Venus, Sun, Mars, Mercury in the 10th, even they stay in the same house, same Rashi for a period of close to 1 month. ओके तो अगर आपके प्लानट में, आपके चार्ट में अगर सन 10th में है या वीनस 10th में है, तो वो अराउंड 1 महीना रहेगा, और 1 महीने तक 2 घंटे के लिए रोज़ वही लगन बनेगा, और जो भी पैदा होगा उसका वही प्लानट 10th में होगा। तो वो सब लोगों को सिमिलर प्रोफेशन भी नहीं होता उनका, और सिमिलर दशा अंतरदशा में उनको हायर रिस्पेक्ट या सोशल एलिवेशन, एक सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट या डिग्निफाइड पोजीशन नहीं मिलती है, क्योंकि ये बहुत लंबा योग है। ये सिमिलरली ये कंटिन्यू होता है 1 महीने तक मिनिमम। अगर सैटर्न है तो 2.5 साल तक। अगर आपका सैटर्न, लेट्स से आपका मेष लगन है और सैटर्न 10th में है मकर राशि में, तो 2.5 साल तक वो मकर राशि में है, और रोज़ जब भी मेष लगन बनेगा तो वो वहीं पे मिलेगा आपको। इसलिए मैंने ये नोटिस किया, पहली चीज़ तो फेम और रिस्पेक्ट, सोशल अथॉरिटी, डिग्निफाइड पोजीशन, सोशल एलिवेशन, ये जितने भी शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सारे शब्द नॉन मटीरियल हैं। आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो, ये आपके दिमाग में है, शायद मुझे पता है तो मेरे दिमाग में है, बट ये कोई मटीरियल रैंक नहीं है। ये नहीं है कि इसका मतलब ये है कि आप एक्स 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 मिनिस्टर हो या XYZ रैंक में हो, ऐसा मतलब नहीं इसका। ये मन में रिस्पेक्ट है। जिसको फेम क्या है, मन में किसी के आपके प्रति प्यार है, मोहब्बत है, वो फेम है। करेक्ट। कोई रैंक नहीं है फेम। ये नहीं है कि फेम होता है तो ये घर है तो फेम है, ऐसा नहीं है। वो एक इमोशन है। रिस्पेक्ट एक इमोशन है। सोशल एलिवेशन एक मास इमोशन है, जो जितने लोग आपको जानते हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि नेशनल लेवल फेम की मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग आपको जानते हैं, अगर सब लोग बोलें अरे वाह इसने तो बहुत अच्छा काम करा, तो ये सबका इमोशन है आपके प्रति।
तो ये क्योंकि मटेरियल चीज़ नहीं है, इसलिए ये लगन से 10th से नहीं दिखती है, नंबर वन। नंबर टू, लगन से 10th वैसे ही रहता है बहुत समय तक। मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे रिसर्च में, एनी काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस, लव, रिस्पेक्ट, एलिवेशन, डिग्निटी, ये सब कुछ चंद्रमा से 10th में दिखता है, ना कि लगन से 10th में। And almost invariably every time when somebody gets extended respect or extended love, even in their own family or in their own office, not talking about national level or state level or city level love and respect, no, even in your own surroundings, वो चीज़ आपको तब मिल रही है, आप चेक करो अपने चार्ट्स में और अपने फैमिली के चार्ट में, जब उसकी 10th फ्रॉम मून की दशा, अंतरदशा है, स्पेशली भुगती है, वहाँ पे वो स्टार्ट होता है। 10th फ्रॉम मून का लॉर्ड और 10th फ्रॉम मून में बैठे हुए ग्रह, ना कि लगन से 10th में बैठे हुए ग्रह, ना कि जन्म लगन से 10th में, बल्कि चंद्र लगन से 10th में बैठे हुए ग्रह और चंद्र लगन से 10th का लॉर्ड। ये वो दशा अंतरदशा है जिसमें प्यार, सपोर्ट बहुत बड़ी बात है, सपोर्ट भी, पब्लिक सपोर्ट, मास अपील, पब्लिक कनेक्शन, पब्लिक डिग्निटी, रिस्पेक्ट, लव, फेम, इवन अथॉरिटी की दूसरे लोग आपकी बात सुने, दे लिसन टू यू, दे वांट टू फॉलो यू और डू एज यू से, ये सब कुछ चंद्रमा से 10th में मिलेगा, ना कि लगन से 10th में। लगन से 10th में कोई ऑफिस मिलेगा, कोई कॉर्नर ऑफिस है, कोई प्रोफाइल मिलेगी, बट not always getting that profile results in getting love and support and respect. So चंद्रमा से 10th will give you that. चंद्रमा से 10th की दशा, इन माई एक्सपीरियंस, चंद्रमा से 10th लॉर्ड की दशा, इन माई एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बेस्ट दशाज हैं लाइफ में विद रिस्पेक्ट टू योर करियर। वो और कहाँ का लॉर्ड है, लगन से कहाँ का लॉर्ड है, सूर्य से कहाँ का लॉर्ड है, वो सब देखना पड़ेगा फॉर हेल्थ एंड फैमिली हैप्पीनेस एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट करियर रिलेटेड एंड सोसाइटी में एलिवेशन, सोसाइटी में नाम ऊपर जाना, इससे रिलेटेड जो बेस्ट दशा है वो चंद्रमा से 10th हाउस में बैठे हुए ग्रहों की है या लॉर्ड की है। अब इसमें एक और सवाल उठता है, वी हैव टू ऑलवेज, वॉट एवर आई एम टीचिंग और stating, you have to use common sense to apply. चंद्रमा से 10th में किसी का बड़ा बुरा प्लैनेट बैठा है, अकारक बैठा है, तो उसकी दशा जो है वो उतनी अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि वो बुरा प्लैनेट है लगन से और चंद्रमा से भी, मान लो खराब घर ओन करता है, तो वो अच्छी नहीं जाएगी उतनी। फिर भी उसको थोड़ी बहुत पब्लिक में शायद नोन हो जाए, फेम हो जाए, या सपोर्ट मिल जाए, जो कि बुरा प्लैनेट है तो शायद सपोर्ट मिल जाए कि अरे यार बेचारा, इसको दिक्कत होगी, कुछ इस लाइंस पे हो जाए। बट हाँ, पब्लिक इमोशन आपसे जुड़ेगा, 100% जुड़ेगा, नेगेटिवली या पॉजिटिवली जुड़ेगा। देखना पड़ेगा कि प्लैनेट कौन सा है, कहाँ के कौन से भाव ओन करता है, किस प्रकार की राशि में है, कैसा नौमांश ओन करता है, कौन से नक्षत्र में, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं उसके अंदर। बट अगर एक ब्लैंकेट रूल देना है, किसी ने पूछा कि साहब मैं कब फेमस होऊंगा या मुझे कब प्यार मिलेगा लोगों से, अनजान लोगों से और जानने वाले सबसे, तो आप चंद्रमा से 10th लॉर्ड की दशा अगर उसकी आने वाली है इन द राइट एज, ऑलवेज एज रियली मैटर्स फॉर करियर स्पेशली, जो कि एट अ यंगर एज यू आर नॉट एक्टिवली परस्यूइंग योर करियर। सेम गोज फॉर पीपल हु आर 70+, 65+, जो भी अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से। तो राइट एज में अगर आ रही है, देन यू कैन प्रिडिक्ट कि इसमें आपको ये फ़ायदा होगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू मैसिव रिस्पेक्ट, massive power, control over other people and emotions of other people aligning with you, those kind of situations happen when the 10th from moon makes a connection with the 10th from lagna and the dasha also comes। दोनों में अगर है, जैसे कि किसी का 10th फ्रॉम मून का जो लॉर्ड है वो लगन से 10th में बैठ गया जाके, तो वहाँ पे ये एक बड़ा कनेक्शन हो गया। या ऐसा कुछ हुआ कि 10th फ्रॉम मून में राहु बैठा है
जो अपने फिफ्थ एस्पेक्ट से या नाइन्थ एस्पेक्ट से टेंथ फ्रॉम लगन को देख रहा है और दशा राहु की मिल गई, या राहु जिस राशि में बैठा है उसके लॉर्ड की मिल गई, ये सब एक्सेप्शनल केस बनाते हैं जिसमें इंसान कोई बहुत हाई प्रोफाइल जॉब में, हाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में भी जाएगा, प्लस उसका घर, खानदान, परिवार, ऑफिस, मोहल्ला, नेबरहुड सब उसकी तारीफ भी करेंगे और उसको एक रिस्पेक्ट भी मिलेगी। ठीक है। इससे भी ज़्यादा एक्सेप्शनल सिचुएशन तब बनेगी जब टेंथ फ्रॉम मून, टेंथ फ्रॉम जन्म लगन और टेंथ फ्रॉम सूर्य लग्न तीनों कनेक्ट हो जाएं। एब्सोल्यूट फेम, दिस could result in mass fame, state level, national level kind of fame, and it will only happen if that person gets that दशा ऑफ द ग्रह इन्वॉल्व इन दिस योगा। सो अगर इसमें तो तीन प्लेनेट हो सकते हैं कि एक जन्म से टेंथ लॉर्ड है, एक लगन से टेंथ लॉर्ड है, सॉरी चंद्र से, एक सूर्य से, तीनों एक साथ हैं, तो तीनों में से एक की दशा चली, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब देखना पड़ेगा वो एक की दशा जो चली है वो कौन सा लॉर्ड है, तीनों में से कौन सा लॉर्ड है, तो यू विल नो कि ये शुभ है, अशुभ है, और कौन से घर ओन करता है, जहाँ बैठा है वो उसका फ्रेंडली साइन है कि एंटी साइन है, उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि है क्या, अगर दृष्टि है तो फिर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, राहु की दृष्टि भी है क्या तो वो एम्पलीफाई भी हो जाएगा। दोनों की दृष्टि होना बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव है आपके चार्ट में। अगर कोई भी एक भाव या एक ग्रह के ऊपर गुरु राहु दोनों की दृष्टि है तो वो एक्सेप्शनली केपेबल है मटीरियलिस्टिक रिजल्ट्स देने में, सोशल मटीरियल रिजल्ट्स देने में एक्सेप्शनली केपेबल है वो प्लैनेट। नाउ ये तीन लगन से हो गया। एक और पॉसिबिलिटी है इसको और बड़ा बनाने के लिए। मान लो कि तीनों लगन के ग्रह टेंथ लॉर्ड्स कनेक्ट हैं, ठीक है, तो ये तो अभी हमें लग रहा है कि एब्सोल्यूट केस है, नहीं, इसमें भी एक और पॉसिबिलिटी बनती है, दो तीन पॉसिबिलिटीज़ और बनती है। एक ये बनती है कि क्या ये तीनों के जो ग्रह हैं उसमें से जिसकी दशा चल रही है, क्या वो टेंथ नवांशा से भी कनेक्शन बना रहा है, ये टेंथ नवांशा का भी लॉर्ड है, ये टेंथ नवांशा में भी बैठा है, कुछ ऐसा है क्या, या जो किसी एक लगन का लॉर्ड है, टेंथ का लॉर्ड है जन्म चंद्र या सूर्य से, क्या उसकी जो नवांश राशि है ये उसका भी लॉर्ड है। अगर नवांश में भी पॉसिबिलिटी बन रही है तो ये 4 गुना ज़्यादा बड़ा योग बना। उसके बाद या उसके बाद या उसके पहले, इन एनी ऑर्डर, आई एम नॉट स्टेटिंग एनी ऑर्डर हियर, क्या ये प्लैनेट मकर राशि से भी योग बना रहा है, नेचुरल टेंथ हाउस को भी क्या देख रहा है, या क्या ये प्लैनेट शनि है जो कि नेचुरल टेंथ लॉर्ड है। अगर ये प्लैनेट शनि है तो ये चीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। या ये मकर राशि में बैठे हैं सारे ग्रह, ये तीनों तीनों टेंथ लॉर्ड्स क्या मकर में बैठे हैं, या मकर से कुछ रिश्ता बना रहे हैं, या शनि इनके साथ कुछ कनेक्शन है। इस तरह से यू हैव टू कीप ऑन बिल्डिंग योर थीसिस इन अ हॉरोस्कोप। एक हॉरोस्कोप देख रहे हो, एक पॉइंटर मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, पांचवा मिला, छठा मिला, दशमांश में चले गए, वहाँ कैसा लॉर्ड है, या सब तरफ अगर कंफर्मेशन मिलता जाए देन यू कैन रियली प्रेडिक्ट कि हाँ यार ये तो मास फेम है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल भी फेम हो सकती है। इस तरह से यू हैव टू सी। पराशर ने मध्य पराशरी में हर जगह ऑलमोस्ट लिखा है कि जो भी टेंथ हाउस के रिजल्ट्स आपको देखने हैं वो सूर्य से टेंथ से भी देखें और चंद्रमा से टेंथ से भी देखें। तो इसका मतलब यही है, इसको डिकोड करोगे तो इसका मतलब यही है कि अगर ये तीनों टेंथ लॉर्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं या सुपर इम्पोज, अगर जब आप सुदर्शन चक्र में जब आप तीनों लगन को एक के ऊपर एक रखेंगे तो क्या टेंथ हाउसेस सिमिलर हैं या सेम हैं या कनेक्टेड हैं, अगर ऐसा है तो एक्सेप्शनल रिजल्ट्स हैं। फिर उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि है तो और ज़्यादा मल्टीप्लाइड है, राहु की भी दृष्टि है तो पैशन भी है उसके अंदर, एम्पलीफिकेशन भी है। तो और वो शायद राहु की दृष्टि है तो उसकी नीड भी है, वो चाहता भी है उसको बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से निकल के आएगा। प्लस नेवर फॉरगेट टू सी
कि ये क्या तीनों प्लैनेट्स आपस में मित्र हैं, शत्रु हैं, कैसे हैं, राशि जिसमें बैठी है वो कैसी राशि है, ये तीनों के तीनों अगर कनेक्शन बनाते हैं टॉरस में, तो ये दिखाता है कि कुछ फैमिली वैल्यू लीनिएज जेनेटिक्स में ही कुछ ऐसा होगा कि वो इंसान फेमस होगा। मान लो टॉरस में बनाते हैं, लियो में बनाते हैं, ये सब जेनेटिक्स वाली राशियाँ हैं, सेकेंड हाउस में बना लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर इनका रिलेशनशिप एर्थ में है, किसी हिसाब से एर्थ आमशा जुड़ रहा है, वृश्चिक है, केतु है इन्वॉल्व, तो ये ट्रांसफॉर्मेटरी एक्सपीरियंस है। शायद वो इंसान पहले बिल्कुल फेमस ना हो, अचानक से बदल जाए। इस तरह के रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं आपको। कुंभ में है अगर, तो वो सब कनेक्ट कर रहा है। कुंभ का मतलब है कनेक्टेड, कनेक्शन। तो वो सब कुछ जोड़ देगा, अपनी लाइफ के सारे अच्छे बुरी चीज़ों को जोड़ देगा। उसके जोड़ने की वजह से एक फॉलोअरशिप बनेगी उसके पीछे, कुछ लोग उसके साथ आएंगे और उसको वो रिस्पेक्ट मिलेगी, मास अक्लेम भी मिल सकता है कुंभ में, जो कि कुंभ 11th हाउस है, जो कि रिवॉर्ड्स का कारक है, प्राइज़ का कारक है, अवार्ड का कारक है। तो कुंभ में तो अक्लेम दिखता है कि लोग तारीफ़ कर रहे हैं, मतलब अनजान लोग, क्रिटिक्स भी तारीफ़ कर रहे हैं। क्रिकेटर हो सकते हैं ऐसे में, एक्टर्स हो सकते हैं, और नेता हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है। हर समाज में अलग किस्म के लोग होंगे। इंडिया में जो मास फेम है वो एक्टर्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस और अब एंटरप्रेन्योर्स को मिल रहा है रिसेंटली। वैसे ही किसी और देश में शायद कुछ किसी और प्रकार के स्पोर्ट्समैन को मिलता हो, अलग अलग किस्म के लोगों को मिलता हो। वो समाज पे डिपेंडेंट है, इसीलिए देश काल परिस्थिति इंपॉर्टेंट है। सो 10th आमशा का कनेक्शन इन सूर्य, चंद्र एंड जन्म लगन becomes very important. If Shani is involved, because he is the natural 10th lord, it amplifies, kind of, stabilizes this connect. Not amplifies, but stabilizes it. Makes it very stable, makes it very permanent in nature. वो जाता नहीं फिर वो फेम। और 5th हाउस इज़ अगेन द हाउस ऑफ लव एंड फेम। तो अगर 5th लॉर्ड भी कहीं से एस्पेक्ट मार दे तो और अच्छा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ल्यूमिनरीज का कनेक्शन है सन मून का, तो अगेन दैट एड्स टू द फेम। यू कैन कीप ऑन एडिंग दीज थिंग्स। वीनस कैन ऐड टू द ग्लैमर एंड द ग्लिटरैटी, पापराज़ी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो इस तरह से यू हैव टू कीप ऑन सीइंग कि क्या 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 बन रहा है। बट द रीज़न वाई हैव मेड दिस एपिसोड टुडे इज़ टू से कि अगर हमें एकदम बेसिक कंडीशन लेनी हो तो ज़्यादातर केसेस में यू विल फाइंड कि 10th फ्रॉम लगन में वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, वो लव अफेक्शन नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी, जो कि 10th फ्रॉम चंद्र में मिलेगी। 10th फ्रॉम चंद्र की दशा becomes one of the most important दशास फॉर योर करियर, बिकॉज इफ़ इट सेज दैट यू विल गेट लव एंड रिकग्निशन, मतलब कि काम अच्छा होगा, नहीं तो क्यों मिलेगा। अगर आप उस समय करियर में इन्वॉल्व हो तो एज देखना बहुत ज़रूर है। Culturally and biologically expected events of that age ही होते हैं in that age। मतलब अगर किसी की 5th लॉर्ड की दशा है मान लो, और वो टीनेजर है, तो लव अफेयर होने के चांसेस बहुत हाई हैं, बहुत हाई, हो ही जाएगा। लेकिन अगर वो मैरिड है वहीं पर, तो बच्चा होने के चांस हाई, हो जाएगा। इस तरह से यू हैव टू सी कि बायोलॉजिकली और कल्चरली क्या चीज़ उस समय पॉसिबल है। इसी को देश काल परिस्थिति बोला गया और कुछ नहीं बोला गया। ठीक है। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर इज द दशा ऑफ द 10th फ्रॉम मून। 9th फ्रॉम मून अगेन कैन शो सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन हैपनिंग, तो वो खुशी का है। तो that's also very important at times. 9th from moon can give some results for actors and people who are into content creation. 5th from moon can also give recognition in the dasha. So you have to also see it with respect to the profession that person is in. Yeah, so yeah, this is my, and one more thing, almost invariably, if you guys have seen charts of people who are Vrishchik Rashi people, Scorpio moon people, just try to run through their lives. No matter which lagna they are, you will find that they had a better sun dasha than the Venus dasha. Just do check this and please comment on this video. This is a part of the research. If you find something which is not aligning with this thesis,
Even if that person is a Tula Lagna born or a Kumbh Lagna born, if the Rashi is Vrishchik, then the Venus Dasha would have been practically okay. Maybe he Kumbh Lagna person can enjoy a lot of good things, but social recognition, career upliftment, all of those achievements and awards and all of those things, recognition will come more in the Sun Dasha. इसीलिए ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग जो हैं जितने भी हैं, you will find that that Sun Dasha comes in the middle ages, and that is when they become very high profile. Uh, they get high profile jobs and positions in Dasha of Sun, not in Dasha of Venus. Venus could be good for fun and frolic and having a good time, but not achievements. And in Lagnas in which Venus is not a good planet, then it could be a very bad Dasha also. But Sun Dasha will be good. Similarly, with Leo moon, also you will find that people who have Leo moon will have a better Sun Dasha. That's obvious because Leo becomes the Chandra Lagnesh. So, okay, that's easy. But in Vrishchik moon, I think I, I've seen in multiple charts that Sun Dasha results in the best phase of their lives, being that Lord of 10th from moon. Please do share charts of Vrishchik moon people and if they have gone through Sun Dashas and Venus Dashas, and if you can give a comparative study of Venus versus Sun, it will contribute to the research. Alright, guys, for personal consultations and discussions, you can WhatsApp me on 790 540 1688. Thank you. Namaskar.